जब हम तीसरी आयत का आगे जाए, एक दिन छट जाना दुनिया के शहर में, जरूर से उठ जाना नास्ती दे शहर में। क्या इबादत से पहले भी हमने अपनी भाभी के साथ बात की। So she is really going downhill. खुदा बाप दुआ करने इस वक्त वहाँ पर रास्तों में इस सारे खानदान पर खुदा तेरी तसल्ली और तेरी हजूरी का बादल पूरा बिछाया है। हमारे भाई को खुदा बच्चों को तू संभाला दे खुदा, तेरा शुक्र कि वो जानती खुदा के वो तेरी बच्ची हो। इस वक्त खुदा हम अपने ईमान से अपनी आंखें खुदा तुझ पर लगाए रखें और याद रखें खुदा कि तेरे हाथ में है हमारी जिंदगी, और तूने हमें हमेशा की जिंदगी का वादा किया। So watch over the whole family, Lord, I pray now. और इसके साथ ही वो खानदान भी खुदा जो गए हमारे चर्च से खुदा अफसोस में, खुदा watch over them too. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. तो आज थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम पर गौर करना चाहते हैं। मैंने आपको ये रेफरेंस दिया था, कितने लोग हैं जिनको मौका मिला इस वीकेंड पर पढ़ने का? हम कोशिश करेंगे कि अब हर सर्मन के जो टेक्स्ट है खासकर रेफरेंस वो आपको दे दिया जाए पहले ही, ताकि आप घर से पढ़ के आए। तो फिर इट हेल्प्स यू टू गो इनटू इट व्हेन वी ओपन द वर्ड टुगेदर। सो जिसने पढ़ा था वो प्लीज माइक उनको दे दें, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए। और जब खुदा का कलाम पढ़ा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या किया उस वक्त लोगों ने। सो इफ वी हैव द माइक प्लीज सोना, ये दे दूं? हाँ, आप पूरी बात प्लीज कर दें, फिर हम जल्दी से नेक्स्ट मैसेज। ਨਹਿਮਿਆ ਦਾ ਚੈਪਟਰਸ 8 ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੇਜ ਹੈਗਾ 735। ਆਜ਼ਰਾ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਤਦ ਉਹ ਲੋਕ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਜਲ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਜਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਜਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਸਨ: ਮਤੀਆ, ਸਮਾ, ਅਨਾਇਆ, ਉਰੀਆ, ਹਿਲਕੀਆ ਅਤੇ ਮਾਅਸੇਆ। ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਸਨ: ਫਦਾਇਆ, ਮਿਸ਼ਾਇਲ, ਮਲਖਿਆ, ਹਾਸ਼ਮ, ਹਬਦਨਾਇਆ, ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਐਂਡ ਮਸਲਮ। ਅਜਰਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਦ ਅਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। I think it is appropriate that we also stand now and listen to the rest of the word. और ये खुदा के कलाम की इज्जत है कि खुदा बुजुर्ग की ताज़ीम होती है ਜਦੋਂ खुदा का कलाम पढ़ा जाए कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਈਏ।
ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਦ ਅਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ। ਯਸ਼ੂਆ, ਬਾਨੀ, ਸੇਰੇਬਪਾ, ਜਾਮੀਨ, ਅਕੂਬ, ਸ਼ਬਈ, ਹੋਦੀਆ, ਮਾਇਆ, ਖਲੀਚਾ, ਅਜਰਾ, ਜੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਹਨਾਨ ਅਤੇ ਪਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹਮਾਇਆ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਜਰਾ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਾਖਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਲੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਾਖਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। Thank you, Suki. I'm sharing this with Mike. There will be some references, after this. Please be seated. Celebration हो रही थी उसे, है जी ना? People gather together ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। The whole community gather together. और फिर यहूदी लोग सारे उन्होंने पता कि law of Moses, खुदा की किताब सानू पढ़नी चाहिए क्योंकि खुदा का वचन सारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट सीगा क्योंकि ਇਹ ਲੋਕ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। Now to live in bondage for 70 years is not easy. और ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੋਸ਼ ਹਾਸ਼ਾਨਾ ਰੋਸ਼ ਹਾਸ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, which was the first day of 7th month according to the Jewish calendar. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੌਲੀਡੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਨ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੋਲੀ ਡੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ, न्यू ईयर, नया साल आएगा और नई जो बातें हैं वो अब देखने में आनी है। तो क्या होता था, यूजुअली सितंबर अक्टूबर में ना ये होता था 2 दिन के लिए। So that's what was happening at that time. So do you remember what was the occasion now कि क्यों लोग इकट्ठे हुए? क्योंकि उनके नए साल का जश्न था, रोश हाशना उसको कहते थे। याद कर रहे थे वो आज जो कुछ ये क्राउड यहाँ बैठा हुआ था, एक खुले मैदान में खड़े हुए थे, बल्कि क्योंकि they were just happy। और याद क्या कर रहे थे? खुदा के बात, खुदावन की बातें सही है। लेकिन जरमाया की किताब, उसके आप अगर देखें चैप्टर 31 में
तो उनको खुदावंद का कलाम जो है ना, उसकी बातें, उसकी प्रोफेसीज, उसकी नबूवत, उसकी जो पेशेंट गोई की गई थी ना, वो याद आ रही थी। So, Sharon, can you read for us, please? Jeremiah 31 में क्या लिखा है, 3 और 4 और फिर 11 से 14। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ, I love you। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਾਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓਗੇ। So you will sing again। Bondage ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, but you are going to sing again। Yes। ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Yes। ਅਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਯੋਨ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਅਨਾਜ, ਦਾਖਸਾਰ, ਤੇਲ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ। ਇਹ ਸਿੰਜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਲੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं प्रभु ने ये कहा है। कैसे वाले हैं ना, आपने गौर किया कितना खुशियां पर लिखा है, भरपूरी, मामूरी, जश्न, आजादी, बहाली, prosperity, everything is found here। And it was spoken when things were bad, but now the Lord has fulfilled that। खुदावंद ने वो बात पूरी कर दी है। आप खुश हैं कि आपके हाथ में जो खुदा का कलाम है वो अटल है, उसके बाद में कभी टल नहीं सकते हैं। जो उसने कहा कि सालों साल पहले वो उसने पूरा कर दिया। और आज लोग मना रहे हैं जश्न खुदावंद की हजूरी में। हम भी अगर बिलीवर्स हैं तो वी शुड आल्सो रिजॉइस इन इट कि खुदावंद के वादे जो हैं कभी टलते नहीं। एक एक वादा जोशुआ ने कहा अपनी किताब के आखिर में कि एक एक बात जो खुदावंद ने कही थी उसमें से एक बात भी ना छूटी। खुदावंद ने जो कहा था वो सब पूरा कर दिया। सो क्या हो रहा था यहाँ पर, एक गौर करें बात कि जब ऐसी चीज होती है तो सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है, सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है काहे के लिए, मिलकर उसकी इबादत करने के लिए। और joy that comes from understanding and obeying God's command। जब पता लग जाए कि ये खुदा ने कहा था और अब उसने वो पूरा कर दिया तो दिल खुशी से भर जाते हैं। God is a promise keeper God। एक इंग्लिश का गीत है, सुनिएगा, वे मेकर, प्रॉमिस कीपर। वो जो कहता है ना वो वादा पूरा भी कर सकता है, हमारी तरह नहीं कि कहाँ और भूल गए, सॉरी मैं बिजी हो गया थी, मैं करना नसीब पर मैं आ नहीं सका। But he says he does it, he means it। वहाँ पर क्या किया गया था, आप अपने बच्चे में आपने अभी सुना ना, तो I don't want to go into too much detail क्योंकि अभी हमने बैप्टिज्म भी देखते हैं, उनके साथ मिलकर जश्न भी मनाना है जो खुदावंद के नाम में इस वक्त वो पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हैं कि उसके बच्चे हैं। लेकिन काय के लिए इकट्ठे हो रहे थे, वर्शिप के लिए। और जब आप वर्शिप के लिए आना चाहते हैं तो हमारे दिल में क्या ख्वाहिश होती है कि हमारी नरिशमेंट हो जाए, हमें रूहानी ताज़गी मिल जाए, इसलिए इबादत में हम आते हैं। कितने वो बदनसीब लोग हैं जिनके पास मौके हैं लेकिन वो शायद अपने बेड पर इस वक्त पड़े हुए या सोए हुए हैं। But here we come, you know, we get nourished, we get enriched, we get blessed। खुदा का कलाम हमें ताज़ा करता है, डायरेक्शन देता है। So public reading of the law and its role in the spiritual renewal of the community, ये बड़ा जरूरी होता है। खुदावंद ने इसलिए लोकल चर्चेस बनाए हैं ताकि हम वहाँ जाकर मिलकर खुदावंद की हम करें, उसका वचन सीखें और रूहानी ताज़गी हासिल करें। अज़रा की जिम्मेदारी लगी। अज़रा एक बहुत स्क्राइब भी था, he was a priest also, तो उसको कहा गया कि वो वचन लेके आए।
कि जब ना वचन भूल भुला जाते हो। जैसे हमारे घर में बाइबल पड़ी हुई है, मट्टी पड़ रही है ऊपर, मट्टी तो पड़ेगी अगर उसको खोलेंगे नहीं, वो सिर्फ बाहर से गंदी होती है, जब हम खोलते हैं तो अंदर से गंदी होती है। और जब ये लाइनें मारकर मार्क मैंने किया पता कितने साल पहले यही पैसेज, तो हमारी जिंदगी साफ होती है। किसी का जितनी आपकी बाइबल मार्क करने से गंदी होगी उतनी आपकी जिंदगी साफ होगी। सो बाइबल को डस्ट ना पड़ने दे, सिर्फ बाइबल को खोला करें, पढ़ा करें। दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग हियर। और ऐसा करने के लिए खुदा ने देखिए मुकर्रर किए लीडर्स मुकर्रर, स्पिरिचुअल लीडर्स ही आपको, पास्टर्स ही हैं, बहुत से लोग हैं जो तैयार हो रहे हैं सिखाने के लिए वचन को। सो रीड किया गया, लेकिन जब रीड किया गया देखें तो खुदा ने खुदा के कलाम की, लोगों ने खुदा के कलाम की ताज़ीम की है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि हम भी ये प्रैक्टिस करें, जरूर इस बात की प्रैक्टिस करें। जब भी आप देखते हैं खुदा का कलाम पढ़ा जाता है, खासकर स्टार्ट में जब हम पढ़ते हैं, जब मैसेज से पहले कलाम पढ़ा जाता है, खड़े हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि आप अलर्ट हो गए। बैठे बैठे जब बनता है कुकिंग भी मार बनता है, पता ही लगा भाई उठ। लेकिन जब आप खड़े हो जाते हैं तो ये अटेंशन हो गए खुदा के कलाम के लिए। What a beautiful practice, you know, that we should apply. तो हम कोशिश करेंगे इस बात को इस साल याद रखें कि खुदा का कलाम जब भी हम बोलें उसकी हजूरी में, उसकी ताज़ीम में, इज्जत में खड़े हो जाएं। उनको बड़ी आज़ादी मिली थी, they were just feeling free, you know, 70 साल की बॉन्डेज के बाद। और अब नया साल, नए साल की खुशियाँ, मुझे पता है मैंने वीडियो देखी थी, आपने यहाँ पर नए साल की खुशियाँ मनाई, नए साल को वेलकम किया। इट वाज अ जॉय टू सी दैट, यू नो। और लोग ऐसे मिल रहे हैं आपस में, मेरे साथ खाने पीने भी हुए, पहले भी बाद में भी। लेकिन दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग देयर। तो यही इज्जत है जो हमें भी खुदा के कलाम के लिए करनी चाहिए। It is important also to train people to publicly read the word of God. सब लोग सही नहीं पढ़ते की दफा, और खुदा के कलाम की वो बेइज्जती होती है। इसलिए हमें सीखना चाहिए, शीशे के सामने खड़े होके, आईने के सामने खड़े होके वचन पढ़ें और कहें कैसा मैं लग रहा हूँ, मेरा डिमीनर कैसा है, मेरे प्रोनाउंसिएशन कैसी, मेरे वर्ड्स कैसे निकल रहे हैं मेरे मुंह से। Then you have to, if you take the word of God serious, then you got to do these things, ताकि हम खुदा की इज्जत में, उसकी ताज़ीम में ऐसा कर सकें। So this is what was happening. They all stood. और पता है कितनी देर खड़े रहे थे? किसी को याद है? सुबह से दोपहर तक। It was a long time. And not only that, उन्होंने सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने वचन को देखना, समझना है, क्या कहा गया वचन में। So Bible reading is not enough. Understanding the word of God is important. वहाँ पर आपने देखा कितने लोगों का नाम लिया गया? सुना है ना आपने? Yeah, क्योंकि they were there to help people understand the scriptures. इसी तरह लोकल चर्चेस में भी खुदा ने कुछ लोगों को ये तौफीक बख्शी है, जिन्होंने खुद बाइबल कॉलेज में जाकर या सेमिनरी में जाकर सीखा कलाम, ताकि वो दूसरों को सिखा सकें और समझा सकें। इस साल हम कोशिश करेंगे कि हर चीज के बारे में कोई ट्रेनिंग सेशन होगा, ताकि हम एक दूसरे को और उभार सकें, एक दूसरे को और इक्विप कर सकें, एक दूसरे को और तैयार कर सकें मिनिस्ट्री के लिए। अब पढ़ लेना, खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट कर लेना और उसको समझ लेना काफी नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए? खुदा के कलाम के लिए कुछ रिस्पॉन्स भी देना चाहिए। खुदा का कलाम मेरे लिए क्या रखता है आज, मुझे क्या करना है आज। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स ब्रॉट अबाउट कन्विक्शन। क्या करने लगे लोग जब उन्होंने कलाम को समझा तो उन्होंने गौर किया, दे started to cry, कन्विक्ट जब होते तो आप तब रोना निकलता है कभी खुदा के कलाम के सामने। जब आप तौबा कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, खुदावंद ये मैंने क्या कर दिया, तेरा वचन तो कुछ और कहता है और मैं उसके मुताबिक जिया नहीं, और आपकी आंखें भर जाती।
People did that. Repentance हुई, और जब repentance हो जाती है तो फिर renewal आ जाती है. ये Christian process है sanctification का. जब आप तौबा कर लेते हैं तो आपके दिल में एक नई जिंदगी, एक नया जीवन जो है ना शुरू हो जाता है, और दिन ब दिन आप उसके इमेज पर बढ़ते जा रहे हैं. वो गोल जो है ना, आइडियल हमारे ऊपर है जीसस. We are trying to be like Jesus. We are working towards being like Jesus. और ये sanctification है जिसको हम एक बड़ा theological word कहते हैं, जो जिसका मतलब process of growing into the Lord according to the image that God has given to us. हमारा बड़ा भाई जीसस, हम उसकी मानद बनना चाहते हैं. Amen? तो क्या करता है खुदा का कलाम है जो हमें ऐसा करता है. कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया पास्टर बलवान को, बबली को, पीटर को, मुझे. जिंदगियां चेंज हो जाती हैं. रानी कह रही मुझे भी, और किसको किसको खुदा ने रिन्यू कर दिया है और लाइफ चेंज हो गई है खुदा के कलाम के वसीला से. आमीन. अगर नहीं हुई, आपको शक है तो हो जाएगी. आप खुदावंद के सामने आ जाएं, खुदावंद अपना काम जो है वो आपकी जिंदगी में पूरा करेगा. Word of God brings joy to the hearts. कई दफा ना मैं डाउन हो जाता हूँ इमोशनली, हालात के मुताबिक. कुछ नुकसान हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई गिर गया, कोई ऐसी खबर आ गई, और सडन क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं. होते हैं कि नहीं? सारे नहीं होते ना. I think humanly speaking हम सब इन तरह के हालात में से गुजरते हैं. And you know what happens? खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा है, शायद एक तो हमारे पढ़ने में लिखे होंगे कि खुदा का कलाम हमारे लिए करता क्या है. एक दफा पाकिस्तान में मैं बहुत ही मिशन ट्रिप करके आया, कामयाब मिशन ट्रिप करके आया, और 5-6 दिन के लिए जाना था. फिर जब वापस आया तो पाकिस्तान आपको पता जिंदाबाद है, तो हड़ताल हुई थी, बसें नहीं चल रही थी, आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या करेंगे और ना सिर्फ ये वाली इसी चक्कर में मेरे किसी ने जेब भी काट दी. अब मुझे पहुंचना है घर और फिर रात भी हो गई. Anyway, I got home and bad news, मेरे ताया जी की डेथ हो गई. और everything looked, कि आज ही होना था ये सब. When it rains, it pours. लेकिन आदत थी खुदा की कलाम को पढ़ने की, और अपनी स्टडी में जाके वचन पढ़ा. ज़बूर 55 निकला. ज़बूर 55 ने मेरे दिल को खुश कर दिया. इतना खुश कर दिया कि मैंने गिटार पकड़ के तो एक गीत कंपोज कर दिया. See, this is what the word of God does. It brings joy to us. पढ़िए सर. चलें. Psalm 119 verse 11. मैं तेरा वचन अपने मन विच रखिया है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करा. Yes. आगे 19:8 में 19:8 प्रभु ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ. ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. खुशी दे देते, आंखों में चमक आ जाती है. और जरमाया में लिखे, मुझे तेरा कलाम मिला, मैंने उसको खा लिया. मैंने उसको खा लिया. I just ate it. और वो मेरे अंदर एक ताजगी लेके आ गया. It filled me with the joy of the Lord. और पौलुस लिखता है थेसलोनिकियों की कलीसिया को कि मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि खुदा का कलाम हमारे अंदर होली स्पिरिट के वसीला से खुशी भर रहा है. You are following the Lord. So understanding God's word brought them immense happiness, and that gave them a reason to rejoice. Are you happy? Yes. खुदा का कलाम हमारे पास भी है और हम खुश हो सकते हैं. They were celebrating and there was a joy upon them. So आखिर में कहना चाहता हूँ हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए. Whenever the word is read, हम क्या किया करेंगे? Let's take learn from here. कि जब हम खुदा का कलाम पढ़ें, शुरू में पढ़ें, बीच में पढ़ें, then let's all stand in honor of the word. Number 2, how do we value the word of God?
इस साल आपने क्या प्लान बनाया है कि बाइबल को आप कैसे पढ़ेंगे? और मिट्टी ना पर जाने दें, साफ करें इसको। If you don't have a plan, you know, I'm using this Bible Society plan. Scripture Union का भी है, आपको पता है कि मैं उसकी भी बात करता हूँ, Daily Bread। लेकिन this is just a simple plan of Bible Society। पूरे साल में ना उन्होंने दिया हो। हर दिन आपने कौन सा रेफरेंस पढ़ना है, कौन सा, तो ये कम से कम ना हमें हेल्प कर देता है, because sometimes you know we don't know what to do। सुबह उठ के जैसे तिजोरा निकला है, कभी-कभी करिए ना, लेकिन इससे ये है कि एक प्लान है आपके पास, आप टिक मार्क कर सकते हैं, एक दिन पढ़ लिया और कोई दिन मिस नहीं होगा। 365 दिन के हवाला जात दिए गए। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये आपको भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पर, एंड देन एटलीस्ट यू हैव अ प्लान, बल्कि मंथ बाय मंथ भेज सकता हूँ। मैं कुछ लोगों को नहीं भेजता हूँ ऐसा, एंड दे टेल मी यस आई एम फॉलोइंग इट अप, आई एम फॉलोइंग इट अप। सो इट जस्ट हेल्प्स यू, इट्स वेरी सिंपल। कोई इसमें रीडिंग है सिर्फ, कोई कमेंट्री नहीं है, लेकिन आप रीड भी कर लें, थोड़ा सा गौर कर लें तो दैट विल डू टू। लेकिन हमारे पास डेली ब्रेड है, आवर डेली ब्रेड तो एक और बात है, लेकिन डेली ब्रेड जो है स्क्रिप्चर यूनियन का प्लान है, 5 साल के लिए बाइबल रीडिंग आप कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे फिर? प्लान क्या आपका? प्रायोरिटाइज इट। फिर हमारी जो यूनिटी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इकट्ठे आना जो है बहुत इंपॉर्टेंट। वो लोग इकट्ठे आए थे ना, अब हमने देखना है कि हम में से कौन ऐसे हैं जो आए तो थे एक दिन लेकिन बस गायब हो गए। And if you know them and they haven't shown up anywhere in church, in no church, कुछ ऐसे ही हैं जैसे क्रिसमस पर आए या कोई खास दिन हो गया तो आ जाएंगे। उनको हम कभी-कभी कहते हैं फसली लोग, सीजनल क्रिश्चियन। लेकिन if you think of somebody, will you start to pray for them? And not only that, बल्कि फिर आप हम हिम्मत करना। मैंने तो हिम्मत की, मैं आपको बताने से पहले क्या किसी को मैंने कर दिया हुआ कि भाई आप किसी वक्त आए, उन्होंने कहा अच्छा हम आएंगे। So this is what it was। आज तो टेक्स्ट हमारे सामने, फोन हमारे सामने, बोलना नहीं है जो टेक्स्ट करते हैं, hey I thought of you, how are you, कैसे हैं, आइए आप, come bring people to the community so that we can rejoice together। मुझे पता लगा कि लेडीज एक छोटी कम्युनिटी मिली थी कामनी सिस्टर के घर, एंड उन्होंने भी जैसे मनाया वहाँ पर। कितने लोग थे बाजू? ओह वाह, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम्युनिटी बहुत छोटी है अभी। अंजलि प्रेज द लॉर्ड, आई हर्ड अंजलि बहन ने खुदा का वचन शेयर किया था और लेडीज ने सेलिब्रेशन की, प्रेज गॉड फॉर दैट। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी कम्युनिटी में मिलते रहें ताकि एक दूसरे के लिए हम तरक्की का और खुशी का बायस बनते रहें। सो फायर प्लेस में जब तक लकड़ियाँ होती है ना तो खूब मजा आता है देखने का, लेकिन एक लकड़ी को, लड़की तो नहीं है, एक लकड़ी को उठा के अगर हम बाहर रख लें तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वो ऐसे सुलझ के खत्म हो जाएगा। And some people are like that today। और हमारी जिम्मेदारी है एज चर्च कि हम क्या करेंगे कि उस लकड़ी को, मैं कहता हूँ कोशिश करें लकड़ी को फिर से वापस फायर प्लेस में उन लकड़ियों के साथ ले आए जहाँ पर आग चल रही है, ताकि वो भी वापस आकर उस आग का हिस्सा बन जाए। Amen? Will you do that? Yes. Just one person। Good। Yes कहें तो याद रहेगा। One person। Yes। हमने इस प्यार को ना एक्शन में दिखाया है। उन्होंने क्या किया था? खाने पीने लग गए। ये तो हम लोग यहाँ भी करते हैं ना, यहाँ भी मेरे को चाहे सामान किधर गया? Yeah। So yeah, they celebrated। जिनके पास नहीं उनको खाना भेजा, हम एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, जब किसी को भेजते हैं कुछ ना, what are we showing our love to them, right? God is my strength, the joy of the Lord। God is my strength, the joy of the Lord is my strength, the joy
joy of the Lord is my strength. खुदावंद मैं चाहता हूँ कि हम तेरी खुशी में खुदावंद जिए, ताकि तेरी खुशी की जो ताकत हमें मिलती है, तुझ में शादमानी की जो ताकत हमें मिलती है, वो हमें हर रोज़ खुदावंद से मजबूत करती रहे, ताकि हम खुदावंद तेरे वचन में, तेरे कलाम में आगे बढ़कर बहुत से लोगों को खुदावंद बरकत देने का, उनको टच करने का वसीला बन जाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। Thank you so much. Please be seated.